what changed after social media? फर्स्टली हम एक चीज़ की बात करते हैं, स्क्रीन टाइम एंड अटेंशन स्पैन सोशल मीडिया के बारे में। और ताजुब की बात यह है कि एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन अभी नियर टू 8 सेकेंड्स हो चुका है, जबकि गोल्ड फिश का 9 सेकेंड्स होता है। So do you think listening skills are also important in communication? बिल्कुल, आई थिंक विदाउट अ सेकेंड डाउट। Like gestures or exchanging handshakes on Mr. Modi. It has a positive mindset from his perspective and great outcomes to come for the country. First 7 seconds में ही आप जज हो जाते हो, ये एक ऑलरेडी प्रूवन रिसर्च है। इवन बिफोर यू शेक योर हैंड, जैसे आप रूम में एंटर करोगे, स्माइल करोगे, तभी आपका 10% इंटरव्यू तो वहीं स्टार्ट हो गया है। Hello everyone, welcome to Beyond the Classroom podcast. So today's topic for discussion is communication and work ethics in Gen Z and Gen Alpha. So this generation can record content on camera confidently, but fails to introduce themselves in front of 10 people. So we have access to more communication tools than ever before. But if you say about communication, that is very weak. So are we misunderstanding the Gen Z generation, or we are entering in a generation where these kids or these students are very underconfident and like they have a weaker communication? To decode this, we have our today's guest, Mr. Shivansh Ahuja. Hello Shivansh, welcome to Beyond the Classroom podcast. थैंक यू पुलकित, एंड आई नो कितना एफर्ट हमने डाला है इसको पुल करने में, एंड आई रियली लव द टॉपिक एंड कैन नॉट वेट to proceed with it. Thank you so much for inviting me. So Mr. Shivansh is the founder and CEO of City One Initiative, a national upskilling organization. He is a computer science engineer graduate and management postgraduate from prestigious University of Nottingham. He has chaired, organized and delegated in 300 plus upskilling simulations across the globe. Shivansh was one of the selected for the Teach of India Fellowship in 2017, and he is the recipient of the Young Nottingham Alumni Award, National Youth Icon Award at Constitution Club of India, and at ETH 40 Under 40 North Summit Leaders by Times Group. He has worked with renowned youth organizations like CRY India, MTV, ISEC in various capacities. His work has been widely appreciated regionally and nationally by renowned publications including Times of India, Dainik Bhaskar, and like local coverages. Being an educator and entrepreneur, he loved to explore the 21st century skills arena, especially public speaking and leadership elements. So Thank you, Shivansh, Pulkit. I'm very excited for today's discussion. I'm absolutely excited as well. Let's jump right into it. So Shivansh, like before entering or before diving into the today's topic, I want to understand like why you chosen this career of educating students more on communication and work ethics. थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन पुलकित। ये यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस होता है पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं किसी को एक्सप्लेन जब करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। सो एज यू जस्ट टॉक्ड अबाउट माई जर्नी, प्रोग्रामिंग मेरी बहुत अच्छी थी नहीं, आई वॉज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। देन नॉटिंघम से जब मुझे पता चला कि मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से मैंने उसको डिप्लॉय किया विद सम स्किल्स जो हमारे स्कूल्स में फुल टाइम नहीं पढ़ाए जाते हैं, विच इज पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग। Yes. वो इंटरवाइंड होते हैं बट डायरेक्टली नहीं कंप्राइज करते हैं इन स्कूल्स। सो आई इंटरवाइंड दो स्किल्स, दैट इज द फ्यूचर स्किल्स आवर जनरेशन नीड्स, दैट वी कॉल 21st सेंचुरी स्किल्स, और उनके लिए हमने अपने इनोवेटिव डिस्ट्रप्टिव टीचिंग मैकेनिज्म स्टार्ट किए. So that is how my organization started, which was City One Initiative. So under one umbrella, we teach students about upskilling through mediums of model UNs, Bal Panchayat, public speaking, leadership camps pan India, जो खाली हमारी home city जयपुर में restricted नहीं है, which is in Jabalpur, Agra, Noida, New Delhi and lot of other cities. क्योंकि मेरे और आपके जैसे और बहुत सारे students होंगे, बहुत सारे और learners होंगे जो hesitate करते हैं to talk freely in public, to lead with their full heart and mind and to think freely and analytically. उनके लिए exist करता है City One Initiative, and I think this podcast I'm hoping will be very fruitful for our Gen Zs and Gen Alphas in all terms, क्योंकि they will not only get to understand about workplace ethics जो आपने बताया,
but other than that they will also get some hacks and techniques around public speaking, around how to lead in a better way, around how to think more analytically, and also understand that millennials, Gen Zs and Gen Alphas have a parallel journey in sync जो उनको साथ में करनी है. It's, and obviously it has intersection at some points of time, but it's a parallel journey. So that is what I say. So that is why City One initiative exists and has been existing from the past 10 years and working with leading institutions of India. अमेजिंग. एंड शिवांश, आई रियली लाइक जो आप काम कर रहे हो, जिस तरह के स्किल्स पे आप फोकस करो, पब्लिक स्पीकिंग, देन conducting mock interviews, conducting MUNs. I think these are the real 21st century skills that every student required in today's time. Right. So Shivansh, like I want to understand, जब आप आज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जी. on a daily basis, because you Correct. organize sessions, so what's the difference you notice them, and if you compare with the millennial students? So first of all हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मिलेनियल्स और जेनजीज जो हम एज गैप कहते हैं वो है क्या. सो मिलेनियल्स जब हम हमारी बात करते हैं वो अर्ली हम 1990s से लेके हम मान लेते हैं टिल 1996 मैक्सिमम 1997, दैट इज द मिलेनियल जनरेशन, राइट, जो अभी रिसेंटली वर्कफोर्स में मिड सीनियर लेवल पोजीशंस या सम इन सीनियर लेवल पोजीशंस. वेयरएज जेनजीज जो होते हैं दे आर फ्रॉम 97 टिल 2012 और उसके बाद आ जाते हैं 2012 के बाद Gen Alphas. That is how our breakdown is divided. Correct. अब बात करते हैं कि difference क्या है. So firstly, obviously, हमारी upbringing itself, that has been really different. Be it in terms of communication, parents or our colleagues giving us instructions, or simply us understanding about how to work. Plus, जो upbringing Gen Z's की हुई है, because there is almost a decades gap. अगर मैं देखूं in terms of learning, understanding, performing tasks. सो फर्स्ट थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये है, बहुत सिंपल चीज है, क्लियर इंस्ट्रक्शन टेकिंग एंड गिविंग. कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट, एंड दिस डजंट नीड टू बी बैक्ड बाय एनी रिसर्च, बिकॉज ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब क्लियरली मिलता था हमें हमारे टाइम पे, हम उसको क्लियरली समझते थे, रेसिप्रोकेट करते थे, उसका एक फॉलो अप देते थे और बाद में उसका एक हमें करेक्टिव फीडबैक मिलता था. तो ये वाला पार्ट है जो मुझे लगता है कि हो सकता है लिसनिंग उनमें भी अच्छी हो, बट करेक्टिव फीडबैक वाला पार्ट है जो मुझे लगता है बेटर हो सकता है, कि द एबिलिटी टू टेक दैट करेक्टिव फीडबैक, हाउ यू आर टेकिंग इट, हाउ यू आर डूइंग बेटर. सो एक पार्ट तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन गिविंग एंड टेकिंग में आता है. सेकंड, आई फील जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम हमारे लिए होता था, अगर 9 बजे कहीं पहुंचना है, आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ अस यूज्ड टू बी लाइक कि भाई 8:30 घर से निकलो, भले ही 10 मिनट्स है, 8:40 हम पहुंच के वहां पे 10 मिनट्स वेट कर लेंगे, मीटिंग की प्रेप कर लेंगे, पिच कर लेंगे, बट वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि हम 8:55 पहुंच रहे हैं, वी आर इन अ हैसल टैसल, हबड़ा दबड़ी में पहुंचे, अरे 9:05 हो गए, फिर हम पसीने में पहुंच रहे हैं, शर्ट हमारी मेस्ड अप है, शूज प्रेस नहीं है या पैंट प्रेस नहीं है, शूज अनपॉलिश्ड है. वो सिचुएशन हम नहीं आने देते थे. वो मैंने देखा कि अब थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है. I will not say it's a casual behavior, but it's the outset of the world. There is a lot of external environment factors also जो guide कर रहे हैं. So instruction के बाद ये था time management, और एक third मुझे लगता है जो बहुत बड़ा difference ये था, वो ये था कि जिस तरीके से जो culturally rooted हमारी upbringing हुई थी, जिसमें social media का बहुत minimal role था. जब हम लोग बच्चे थे, I'm sure we both belong to the same area, तो उसमें social media का बहुत minimal role था. अब क्या है, if you are not social, you are not there वाला scenario है. तो सोशल मीडिया ने भी आई फील डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रभावित किया है जो जनजीज की अपब्रिंगिंग है उसको, अप टू आई थिंक 20-30% ऑफ दैट प्रपोर्शन, एंड रेस्ट कोविड वी ऑलरेडी नो डिड सम जॉब देयर. सो दीज आर द 3 एरियाज वेयर आई फील डिफरेंस हैज बीन स्ट्राइक्ड. एब्सोल्युटली. सो शिवांश, व्हाट चेंज्ड आफ्टर सोशल मीडिया? सो क्या सोशल मीडिया आने से जनरेशंस का फोकस लेवल में डिफरेंस आया है, या फिर अगर आपको अटेंशन स्पैन में डिफरेंस आया है, या फिर क्या मेजर इम्पैक्ट हुआ सोशल मीडिया के आने से, जिससे जो अभी आपने पॉइंट्स बताए कि जो ये जनरेशन है ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ये टाइम को लेके इतनी सीरियस नहीं है. सो व्हाट चेंज आफ्टर सोशल मीडिया? सो फर्स्टली हम एक चीज़ की बात करते हैं, स्क्रीन टाइम एंड अटेंशन स्पैन सोशल मीडिया के बारे में. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पुलकित, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर आप एवरेज डे में, एक दिन में आप 1 घंटा रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपका अटेंशन स्पैन कम होगा या ज्यादा होगा? मेरा अटेंशन स्पैन कम होगा. कम होगा, करेक्ट. जहां होना चाहिए वहां पे कम होगा, जहां पे जिन एस्पेक्ट्स में आपको अकेडमिकली या कोई रिसर्च वर्क है, कोई रीडिंग है, उसके लिए कम होगा. और ताजुब की बात यह है कि एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन अभी नियर टू 8 सेकेंड्स हो चुका है.
जबकि गोल्ड फिश का 9 सेकेंड्स होता है. सो हमारा एज ह्यूमंस गोल्ड फिश से भी अब अटेंशन स्पैन कम हो चुका है. तो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है बट स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है. तो हम एक हाइपर कॉग्निटिव स्टेज में आ जाते हैं. हाइपर कॉग्निटिव स्टेज क्या होती है? जेनजी स्पेशली दे आर वेरी केपेबल, आई कंसिडर इन दिस वे, कि वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर वो अपने पोटेंशियल पे आ जाए. इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं, वो एप्स के बीच में जितना फास्ट स्विच कर सकते हैं मैं और आप नहीं कर सकते. अभी Okay. यूट्यूब देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद रील देखेंगे, उसके थोड़ी देर बाद लिंक्डइन पे आ जाएंगे, फिर बाद में हो सकता है कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, फिर वहां पे भी रील स्विच हो जाएगी. तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है सोशल मीडिया का, अगर उसको राइट तरीके से वो यूज करें तो उनका अटेंशन स्पैन बढ़ भी सकता है. बट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है? अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बट मल्टीटास्किंग जो होनी चाहिए एफिशिएंटली वो कम होती जा रही है. उस वजह से लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स दे हैव अ स्लाइटली लेसर प्रेफरेंस फॉर द रिक्रूट्स ऑफ 2024-25 इवेंचुअली. ये एक ऐसा पैटर्न है जो monster.com और naukri.com, ये बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स ने स्टडी किया है कि पीपल आर प्रेफरिंग मोर एआई ओवर द रीसेंट ग्रेजुएट्स, क्योंकि दे आर ग्रेट एट मल्टीटास्किंग एंड हाइपर कॉग्निटिव एबिलिटीज उनमें हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. बट क्या वो कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी भी. कि वो काफी, मतलब सम पीपल आर डूइंग इट, दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड टर्म, बट सम पीपल आर डूइंग इट, बट व्हाट इज फॉर द बिगर पार्ट ऑफ द लॉट, उसको चैनलाइज कैसे करे सही जगह पे. तो दिस पार्ट आई थिंक सोशल मीडिया ने थोड़ा सा चेंज किया है. प्लस पीपल आर मोर सोशल ऑन सोशल मीडिया देन द रियल लाइफ. तो इससे उनकी जो सोशल इंटरेक्टिव एंजाइटी है, जैसे मैं आपसे अभी पर्सनली इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ विद सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो मुझे लगता है कि इवेंचुअली रिड्यूस हो गई है. क्योंकि ऑलरेडी ग्लोसोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग फियर 75% लोगों में है अर्थ में. दैट इज, रोड पे आप जाओगे आउट ऑफ 4 3 लोगों में है. 75 उतना ही हो गया. करेक्ट. जो मैं अभी आपको कार में ही बता रहा था कि नंबर 1 फियर ऑन अर्थ, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछूं क्या होगा? Social anxiety. Correct. I think death is the second fear, and Exactly. first social anxiety or like performance on a stage, giving a speech is the Right. first fear people have right now. करेक्ट. मैं तो ये कह रहा हूँ स्टेज भी अब सेकेंडरी है. अगर आपको एक नॉर्मल कॉफी टेबल इंटरेक्शन करना है विद डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स, वो भी एक फियर हो गया अब आज की डेट में. एंड ऑब्वियसली आई नॉट पुट द इंटायर ब्लेम ऑन कोविड, क्योंकि कोविड के बाद भी अपॉर्चुनिटीज आई. सो इट्स जस्ट दैट वी नीड टू ओपन अप मोर, एक्सपोज आवरसेल्फ मोर टू द फिजिकल अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट. विद दैट आई वुड लाइक टू सम अप. Okay. So Shivansh, what do you think? Students express themselves more online, or they are more expressive like towards making content, or क्योंकि आजकल आप एक pattern shift भी देखेंगे, people are sending more voice notes. Correct. Rather than texting or rather than taking calls. So what's the reason behind this? सो मैं वॉइस नोट्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत वॉइस नोट्स भेजता हूँ. माई एम्प्लॉयज विल वाउच फॉर इट. बट जब हम बात करते हैं फोन कॉल्स की, अब एक ऑर्डर होता है, ये एक लॉजिकल ऑर्डर है. कोई भी चीज जब आप मूवी के फॉर्म में देखते हैं, जैसे हैरी पॉटर मैंने 3 फॉर्म में आपको दिखाई. एक है मूवी, एक है ऑडियो बुक, एक है नॉर्मल रीडिंग बुक जो जेके रॉलिंग ने लिखी है, मिस जेके रॉलिंग ने. आप सबसे ज्यादा अपील किस चीज से होगे? मूवी, राइट, क्योंकि उसकी फ्रेम्स पर सेकंड आपकी माइंड में जल्दी प्रोसेस हो पा रही हैं. फिर नेक्स्ट आप किससे होगे? ऑडियो बुक, एंड देन रीडिंग. करेक्ट. तो यही ऑर्डर होता है कि ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए टेक्स्ट होता है, क्योंकि उसमें फेसिंग नहीं होती इतनी. नेक्स्ट हमारे लिए फेसिंग में आता है ऑडियो, और उससे ज्यादा फेसिंग आता है फिजिकल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो मीटिंग और इन पर्सन मीटिंग. क्योंकि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यस, पीपल आर बिकमिंग मोर अंडर कॉन्फिडेंट ऑफलाइन इन द प्रेजेंट सिनेरियो. मैं रीजन इसका बहुत क्लियरली बताता हूँ. ऑफलाइन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके नॉन वर्बल क्यूज जज हो सकते हैं. बिल्कुल. जो 55% होते हैं आपकी एक स्पीच का, एज पर मर्बियंस कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें हम कहते हैं 7-38-55 रूल. 7 इज स्पोकन वर्ड्स, 38 इज योर टोनैलिटी, द वॉइस टोन, हाई टोन, लो टोन, वो, एंड 55 इज योर बॉडी लैंग्वेज. तो जो 55% है वो तो इंसान आपको देख के ही बता पा रहा है ना. फिर आता है आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल्स जो आवाज में, एंड देन इज योर रिटन पार्ट. सो आई थिंक ऑनलाइन में हमारी प्रेजेंस इसलिए बढ़ रही बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस ऑल टुगेदर. हमारा माइंड उस चीज को चूज कर रहा है, उस इनर्शिया को चूज कर रहा है जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है. एंड वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पार्ट वेयर द लाइफ स्टार्ट्स, व्हिच इज आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन. ये है मेरा आंसर. So Shivansh, why do students struggle with basic communication, like giving an interview or attending a session, then attending interviews? So why they struggle with this? That's a very valid question. इसका आंसर है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स. जब आपको एक डॉग दिखता है रोड पे, लेट मी
जस्ट शेयर, वो एक बहुत फ्रेंडली डॉग नहीं है, एक रॉटवाइलर है या एक पिटबुल है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? फाइट या फ्लाइट? फ्लाइट, और आई लाइक पतली गली से निकलो भैया, हाँ, उससे पहले कि मैं इसका शिकार हो जाऊं। बिल्कुल। करेक्ट, यही पॉइंट होता है बहुत कॉमन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बाय डिफॉल्ट हमारे जैसे एड्रेनलिन रश होता है, हमारे हॉर्मोन्स का गेम है सब। जैसे ही कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आता है जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग से स्टैमरिंग, शिवरिंग, ओवर थिंकिंग, राइट, स्टेज फियर जिसको हम कहते हैं, फियर टू फॉल डाउन, ये क्रिएट होता है। करेक्ट, इन द वेरी सेम वे जैसे कोई भी ऐसा और भी रिस्पॉन्स आएगा तो यू विल स्टार्ट बिकमिंग फियरफुल ऑफ इट। तो ये नेचुरल है। पहली चीज हमें समझना है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स हो, इंटरव्यूज आपने बताया, पॉडकास्ट भी एक फॉर्म है, पब्लिक स्पीकिंग सेशंस भी होते हैं, वो सब में जब स्टेज पे आके कोई भी बात करनी है उसमें नेचुरली कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट होगा। अब बात करते हैं कि इसका रिवर्स क्या इलाज है। इज ऑब्वियसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बी इट सोलो, रिकॉर्डिंग योर ओन स्पीच एंड सेंडिंग इट टू योर मेंटर्स, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर बेसिकली ये भी हो सकता है कि आप एक सैंपल इन्वायरमेंट इमिटेट करो, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर टेक्निक्स। जैसे वर्चुअल एक्सपोजर हो गया, इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर मतलब ऐसी साउंड्स, ऐसे वीडियोस जो आपको सिचुएशन में डालें, आप उसमें जाओ, जिसको हम कहते हैं ना 3D, AR, VR, वर्चुअल सिमुलेशंस जो होती है, वर्चुअल रियलिटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हम अपने माइंड को क्लोजली, अपने हॉर्मोन्स को क्लोजली उस एरिया में ले जाएं। कॉर्टिसोल लेवल से स्ट्रेस बढ़ता है, वैसे हम उस सिचुएशन को इमिटेट कर सके। करेक्ट, उस सिचुएशन की एक सिमिली बना सके। जैसे वैक्सीनेशन से होता है, आप सेम पर्टिकुलर इन्फेक्शन का एक सैंपल डालते हो, उसी तरह आप अपनी बॉडी में सैंपल कैसे डालोगे पब्लिक स्पीकिंग का? उस सिचुएशन को इमिटेट करके। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वाई है। प्लस आई थिंक ये है कि दीज डेज हम जितना एक्सपोजर मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे कर पा रहे हैं, उतने कॉफी टेबल डिस्कशंस हो, उतने इन पर्सन इंटरेक्शंस हो, उतने कम्युनिटी मीटअप्स हो। दैट इज व्हेन द वर्ल्ड विल गेट बेटर, स्पेशली फॉर जेन जीज, जहां पे दे विल नो पीपल आर हियर टू लिसन देम rather than just hear, क्योंकि hearing is partial, listening is complete, especially active listening. So ये मेरा यहाँ पे state रहेगा कि the more you practice, the more you expose yourself to these things, that is stepping out of your comfort zone, then you will get better. And to conclude मैं ये कहूँगा कि आपको पानी को छू के देखना पड़ेगा कि पानी ठंडा है या गर्म। दूसरे इंसान ने पानी छू लिया, दूसरे इंसान ने कर लिया, तो आपको थोड़ी पता चलेगा। उसने बोल दिया गर्म है बट था ठंडा, आपके लिए ठंडा था, उनके लिए गर्म है। परसेप्शन। So it is also a game of perception. Absolutely. और मेरे को लगता है कि जब तक आप इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप सिचुएशन के अंदर जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए हो भी या नहीं। Exactly. Exposure is needed. Exposure is needed. At least first time exposure. Correct. Right. So do you think listening skills are also important in communication? बिल्कुल। आई थिंक विदाउट अ सेकंड डाउट। ये आज ही मैंने एक वर्कशॉप ली थी, उसमें मैंने बच्चों से पूछा भगवान ने आपको कितने कान दिए हैं? 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। करेक्ट। 80:20 का रेशियो होता है। 80% शुड बी लिसनिंग, 20% शुड बी स्पीकिंग, बट होता रिवर्स है, होता है 30-70, 60-40। क्योंकि अब मैं बताता हूँ 90% या 80% जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत बार डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग या कम्बैटिव लिसनिंग की होती है। प्रेजेंटली अगर हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे हम एक्टिवली सुन पाते हैं चीजों को। कैन यू ब्रेक डाउन दीज 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग? हाँ, श्योर। सो आइडियली 3 टाइप्स की होती है। एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इज द वन जिसमें मैंने आपकी बात सुनी, जब मैं सुन रहा हूँ मैंने नॉड किया, मैंने बोला राइट पुलकित, यू आर सेइंग द राइट थिंग, एब्सोल्युटली, सिर्फ कहने के लिए नहीं, रोबोटिकली नहीं, मैंने समझा, दिमाग में रजिस्टर किया अपनी मेमोरी में। यस। और आप मुझसे जब क्रॉस क्वेश्चन करोगे उस चीज पे, उस टॉपिक पे, मैं उसका आपको एक जवाब दे पाऊंगा। ये है एक्टिव लिसनिंग। मीन्स आई अंडरस्टूड एट लीस्ट 50 to 60% और मोर देन दैट, और आई कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इट। एटलीस्ट अगर मैंने 50% सुना तो मैं 40% रिफ्लेक्ट करके आपको एक समरी दे सकता हूँ उसकी। ठीक है। ये होती है एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट होती है पैसिव लिसनिंग। वो तो ये होती है आप बस बैठे हो, आप बात कर रहे हो, आपने आई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, आप नीचे देख रहे हो, बस सुन रहे हो, जितना याद आया आपने उतना बता दिया, जो होता है 10%। और फिर होती है मेरी फेवरेट कम्बैटिव या डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आपकी मम्मी पापा से कभी लड़ाई हुई है? आर्ग्यूमेंट्स आई थिंक सबके होती है। बचपन में आप वो टाइम याद करो जब आपकी लड़ाई हुई होगी और तब आपकी गलती नहीं थी, मम्मी पापा सुनाए जा रहे थे, आप बोल रहे थे बट पापा, बट मम्मी, सुनो, बट सुनो। क्या वो सुन रहे थे? क्या वो सुनने को रेडी थे? समहाउ नहीं।
somehow नहीं। यही मेरा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड कम्बैटिव लिसनिंग। पहले मेरी सुनो आप। जब तक आप उस पॉइंट पे आते हो कि मैं तो सही था, वो पॉइंट तो सबलाइम हो चुका होता है, डाइल्यूट हो चुका होता है कि पापा मेरी बात तो सुनो, कहते तुम चुप करो, आप चुप करो, मत बोलो मत बोलो। जब उन्हें पता चलता है अरे गलती नहीं थी, अंदर से उनको गिल्ट ट्रिप आ गई होती है, बट उनने इतना कम्बैट कर दिया होता है अपनी लिसनिंग से पार्टली आपको कि वो सिचुएशन में नहीं होते कहने की कि मैंने तो पूरी बात सुनी नहीं थी। आती है, आपको भी आई होगी कि मैंने काश पूरी बात सुन ली होती, बट वो पूरी बात सुनी नहीं थी। दिस इज कॉल्ड कम्बैटिव लिसनिंग। और ये मैं कह रहा हूँ कम्बैटिव लिसनिंग हम भी करते हैं व्हेन वी आर अग्रेसिव, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी हैव अ वेरी यू कैन से सबलाइम मूड होता है या सैड मूड होता है। जब हम करते हैं तो हम कम्बैटिव लिसनिंग में ही होता है। हम कहते हैं ना अभी मैं कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, फिर आपको कोई बात सुना दे, वो आपको कभी लाइफ में रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो कब रजिस्टर होगी? जब वो आपको पीसफुली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो चीज वापस समझाएंगे। आप बोलोगे ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? तो आप बोलोगे अरे शिवांश भाई मैंने आपको बताई थी, आप मुझे बोलोगे सुनी नहीं आपने, आपने हियर करी थी, आपने लिसन नहीं करी। सो लिसनिंग इज एन आर्ट, हियरिंग एनीबॉडी कैन डू, दैट इज व्हाट आई फील। हाउ अमेजिंग। एंड आई थिंक सबको लगता है कम्युनिकेशन में सिर्फ स्पीकिंग इज द मेजर पार्ट, लिसनिंग को सब सबलाइम कर देते हैं। करेक्ट। शिवांश, हाउ यू हैव एक्सप्लेन्ड कि लिसनिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं और लिसनिंग ही उतना जरूरी है जितना स्पीकिंग ज्यादा जरूरी है। Absolutely. So I think this is a value added tip that you have Thank given you. to the audience. Thank you so much, appreciated. So Shivansh, like I have observed that a lot of students are very smart in academics, Correct. but they still struggle in interviews or at workplaces. So why does that happen? That's a great question, Pulkit. अब इसका सिंपल मैं बिकॉज आई लव गिविंग एग्जांपल्स, तो अकेडमिक्स आपको जो प्रिपेयर करती है, बीट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, दैट इज फॉर एग्जाम्स। राइट। एग्जाम्स में क्या टेस्ट होता है कि मुझे सोशल साइंस का या साइंस का वो चैप्टर कितना अच्छे से आता है या नहीं आता है, जो भी है, दैट इज कॉल्ड एन एग्जाम वेयर यू टेस्ट योर स्किल्स बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट नॉलेज। हाँ, सब्जेक्ट नॉलेज, टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। बट जब हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की, लाइक पब्लिक स्पीकिंग और मे बी सोशल इंटरेक्शंस, और मेरे पास एक रिसर्च भी है जिसमें 1 in 4 हायरिंग मैनेजर्स से दैट रीसेंट ग्रेजुएट्स आर इल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज। एंड ये intelligent.com का सर्वे है इन कोलैबोरेशन विद ऑलविन स्पेस एंड न्यूज़वीक, और उसमें उन्होंने एक चीज ये बोली कि द ओनली थिंग दैट दे आर लेस प्रिपेयर्ड अबाउट इज आइदर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, improper ड्रेस कोड, या फिर मे बी रिफ्लेक्टिंग देमसेल्व्स और प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो पहले मैं कवर करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा 1-2 एरियाज जहां पे वो बेटर हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप किसी भी मीटिंग रूम में या कहीं भी एंटर करते हो, फर्स्ट 7 सेकेंड्स में ही आप जज हो जाते हो। ये एक ऑलरेडी प्रूवन रिसर्च है, ये तो प्रूवन रिसर्च है कि 7 सेकेंड्स में, इवन बिफोर यू शेक योर हैंड, जैसे आप रूम में एंटर करोगे, स्माइल करोगे, तभी आपका 10% इंटरव्यू तो वहीं स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आता है कि आप कैसे हैंड शेक करते हो। जैसे 6 टाइप्स के हैंड शेक्स भी होते हैं, वेट फिश, डेड फिश, आपका हैंड हग, ऐसे। सो आप कितना फर्मली हैंड शेक करते हो वो भी डिटरमाइन करता है कि लोग आपको कितना कॉन्फिडेंटली ट्रीट करेंगे या कितना याद रखेंगे। So Shivansh, can you break down those 6 type of handshakes? श्योर, मैं आपको दिखाई देता हूँ करके एक बार। सो एक तो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली हैंड शेक करते हो, राइट? नॉर्मली आपने हैंड शेक किया, तो वो होता है वेट फिश। Okay. अगर आपने प्रॉपरली किया, 2 बार फॉर्मली किया, 1 अब ये कॉन्फिडेंस में आता है या अंडर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस में। दिस इज कॉन्फिडेंस। इसको हम लिम्प लेटस भी कहते हैं या वेट फिश भी कहते हैं। ठीक है। अब ये अगर आपने प्रॉपरली 2 बार किया तो लोग आपको नेक्स्ट टाइम ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि आपने कभी किसी से अगर हाथ मिलाया ना, सेंस ऑफ टच कहते हैं जिसको, वो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे। Okay. पहली चीज। ठीक है। दूसरा होता है आपका डेड फिश। डेड फिश क्या होता है, आपने तो अपना राइट हैंड दिया, मैंने आपको कौन सा हैंड दे दिया? लेफ्ट हैंड दे दिया, हो गया सत्यानाश, हो गया ना, ये नहीं करना था ये। अब ये कौन करते हैं? जैसे कोरियोग्राफर्स हो गए, कभी आपने देखा होगा इनफॉर्मल सेटिंग में, विच इज ओके, वो ऐसे हाथ मिलाते हैं क्योंकि उनके राइट हैंड में ऑलरेडी कुछ बुक्स या कुछ होता है, या राइट हैंड में कोई स्क्रिप्ट होती है, तो हाथ ही ऐसे मिलाते हैं, राइट? दैट्स ओके इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। तीसरा होता है आपका हैंड हग, जो आप फ्रेंड्स के साथ करते हो इन एन इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, हैंड हग, व्हाट्सअप ब्रो, राइट? उसके बाद आपका आता है डोमिनेटर, जो वर्ल्ड लीडर्स करते हैं, आई एम अबव यू, जिसमें हाथ के ऊपर ऐसे हाथ होता है। नॉर्मल हैंडशेक नहीं होती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा होगा या व्लादिमीर पुतिन हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख के और यूं करते हैं और फिर करते हैं। इसका मतलब आई एम अबव यू वाला वो स्टैंडर्ड आ जाता है, डोमिनेटर कहते हैं इसको हम। और उसके बाद आता है आपका
क्वींस फिंगर टिप्स एज द लास्ट, उसमें जैसे आपको कोई पोलाइट जेस्चर करना हो, यू वांट टू आस्क समवन फॉर अ डांस, समवन फॉर अ पोलाइट जेस्चर, टेक समवन आउट, तो आप टिप्स को टच करते हो. बट Okay. कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये टिप्स को आप इंटेंशनली टच कर रहे हो. डेड फिश में तो आपने दे ही गलत हाथ दिया. सो कमिंग बैक टू स्क्वायर वन. और मेरे को लगता है हाँ. शिवांश इसमें ना जब हम ग्लास क्लिंक करते हैं लाइक हाँ. चीयर्स करते हैं उसमें भी ये चीज सिनेरियो होता है. करेक्ट. इफ वी टू आर लाइक चेयरिंग आवर ग्लास, अगर मैं आपके ग्लास के ऊपर टिप पे टच कर रहा हूँ अपना टिप, तो दैट्स इज आई एम अबव यू. करेक्ट. अगर मैं पैरेलल टच कर रहा हूँ ऐसे तो वी आर एट द सेम लेवल. यस. अगर मैंने पहले ही इंप्रेशन में आपको नीचे टच कर दिया तो आप समझ जाओ कि यार मैं आई एम अंडर कॉन्फिडेंट और द अदर पर्सन इज अंडर कॉन्फिडेंट, तभी वो मेरे से नीचे टच करो. और या फिर Correct. उसको मेरे से कुछ आस्क है इसलिए वो मेरे से नीचे टच कर रहा है. Exactly. ज्यादा नंबर बनाने के लिए, ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए. एग्जैक्टली. और ये बहुत छोटे छोटे ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. जैसे एक बैरक ओबामा का बहुत फेमस जेस्चर है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा. टिल ही वाज द प्रेसिडेंट, वो हाथ तो मिलाते थे, हाथ के अलावा वो पीठ पे ऐसे हाथ भी रखते थे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बाजू पे, सॉरी, यूं. सो विच मीन्स आई हैव फेथ इन यू, आई हैव ट्रस्ट इन द पीपल ऑफ यूएसए. तो वो हाथ तो मिलाएंगे, हाथ मिलाने के बाद यूं भी करेंगे. सो ये बहुत बड़ा सिंबल होता है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जो हम करते हैं, हमें कई बार पता भी नहीं चलता. जैसे हम क्रॉस करके बैठ जाते हैं इंटरव्यू में आके, कई लोग ऐसे बैठते हैं, कई लोग लेग्स क्रॉस कर लेते हैं ऐसे. दिस शोज अंडर कॉन्फिडेंट. एग्जैक्टली, क्रॉस बन गया ना. हाँ. दिस शोज क्लियर अंडर कॉन्फिडेंस लॉट ऑफ टाइम्स, या दिस शोज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉम्प्ट जेस्चर्स होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जो हमें दिखते नहीं है कभी कभी कि हम कर रहे हैं, बट हम करते हैं. और उससे हमारा इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर पर्सनालिटी. राइट. और ये मैं खुद देख चुका हूँ. जैसे जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी को, अब ऑनलाइन में मैं लिमिटेड जज कर सकता हूँ या ऑफलाइन में मैं ज्यादा कर सकता हूँ, तो वहां पे मैं क्यूज ढूंढने की कोशिश करता हूँ. बिकॉज यही क्यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल्स, द स्कूल अथॉरिटीज, द स्टेक होल्डर्स, they will look in for it. Like even if it's Absolutely. eye contact, even if it's hand Absolutely. gestures, everything they will look in for it. So ये मेरी कुछ additional advices हैं कि हम कर सकते हैं. इससे I think scenarios better होंगे. So शिवांश, ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक है. What are your views on like gestures or exchanging handshakes on Mr. Modi? जैसे वो जब किसी मीटिंग में जाते हैं किससे मिलते हैं तो he warmly hugs. और कई बार जो सामने प्रेसिडेंट होते हैं, कोई पर्सनालिटी होते हैं, they show a little hindrance as well. So Correct. what's your thought on, like, because you are a communication coach, you Right. teach people on communication and these social gestures. So what are your views on this? That's a good question. I'll try not to use the political angle for it. So handshakes का मतलब partnership तो reflect होता ही है internationally, be it two governments, two entities coming together. अब handshake से वो तो चीज clear हो रही है. Now hugging as in India का बहुत important culture है. जैसे एक बहुत important culture है नमस्ते. नमस्ते is a Sanskrit word. नमस्ते, ते में it is you. जो मैं अपनी रिस्पेक्ट है वो मैं किसको दे रहा हूँ? आपको. वो होता है नमस्ते. जैसे प्रणाम भी कहते हैं हम, राइट? जो हमारे वेदास में बहुत जगह पे दे रखा है. सो मेरा पॉइंट वही कि अब मोदी जी पे आते हैं, ही डज इट इन ऑल गुड फेथ, आई एम श्योर जो भी वो करते हैं. आई थिंक हिंड्रेंसेस नहीं है, इट इज अबाउट द कल्चर. जैसे अब आप हार्ट का एक्सप्रेशन ऐसे भी बनाते हो, ऐसे भी बनाते हो, राइट? आपके अलग अलग वेज होते हैं. आप सर के ऊपर से भी हार्ट बना सकते हो. सो आई फील इन अ लाइन टू आंसर इट क्विकली, it is acceptability of one culture with other culture which is still taking time in some areas. जैसे आपको पता है कि कई जगहों पे हम लोग हैंडशेक करते हैं, कई जगहों पे हम जैसे चाइना जापान में कहीं पे हम झुक के भी एक दूसरे को बाउ डाउन करते हैं. वो कल्चर वहां पे अगर कहीं और करेंगे हो सकता है इट माइट साउंड बिट ऑफ. तो हर कंट्री का, हर एरिया का एक कल्चर होता है. हम उस कल्चर को बस स्प्रेड कर रहे हैं. दैट काइंड ऑफ ब्रदरहुड, दैट काइंड ऑफ लाइवलीनेस मिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू गेट टू अदर, यू कैन से not citizens but other world leaders, which I hope is all in good faith, which it is, right, being a proud citizen of India. So I think that is my say in it, and I don't see it as any hindrance for the upcoming years, rather than it has a positive mindset from his perspective and great outcomes to come for the country. जैसे अभी सऊदी अरेबिया में उनका visit हुआ था for couple of hours, and he got 5 billion funding for India, which was a great step, which we feel. So Shivansh, has the use of AI has reduced the emotional intelligence in conversations? I don't think really. Okay. मैं एक बार अपनी रिसर्च पुल करूँ, इससे आपने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया. मेरे पास इसकी बहुत अच्छी एक रिसर्च भी है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 की रिपोर्ट है. पीपल कैन सर्च इट. सो इसमें कहते हैं एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग हैव 0 AI सब्स्टिट्यूशन पोटेंशियल,
इसका मतलब ये है कि स्किल्स जो ह्यूमन इंटरेक्शन में रूटेड हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन एक मस्ट है, वो एआई पब्लिक कभी स्पीकिंग भी रिप्लेस है, नहीं कर सकता। करेक्ट, वो फुल्ली एआई कभी रिप्लेस हम्म। नहीं कर सकता. इट कैन ट्राई टू इमिटेट बट इट कैन नॉट गेट क्लोज टू इमिटेटिंग इट. हम्म। जैसे आपकी एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग हो गई, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन पोटेंशियल नहीं है. और ये 39% ऑफ द कोर वर्क प्लेस स्किल्स हैं, जो ऐसे और स्किल्स आते हैं जो हम Right. जिन पे वर्क करना चाहते हैं. तो आई थिंक कि ये ऐसे स्किल्स है जिन पे एआई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. ऑल्दो टेक के स्किल्स हो गए, एप्स बिल्ड करनी हो गई, प्रॉम्प्ट्स देने हो गए, आई Correct. थिंक एआई यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. बहुत पॉजिटिव्स हैं एआई के. बट कम्युनिकेशन जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे एआई Physical कैन नॉट, touch. फिजिकल टच, फिजिकल मीटिंग, लाइक Correct. डिस्कसिंग इन पर्सन इन पर्सन मीटिंग्स, डिस्कशंस, उसमें आई थिंक एआई कैन नॉट टेक द जॉब. राइट. जैसे मोर ऑफ लाइक यू कैन से पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें एआई का 100% सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो पाएगा. Absolutely. But Shivansh, companies frequently says that Gen Z lack professionalism and work ethics. Gen Why? Z's lack professionalism and And work work ethics. I will partly agree to it. I'll not completely agree because I work with a lot of Gen Zs every single day. I will say particularly that. But I think ये है कि completely this thing is not true. I will say that. हाँ, कई companies हैं जिनको particularly need ही होती है प्रोफेशनल एरियाज की. जैसे बहुत हाई लेवल स्टेक होल्डर्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं, या फिर बहुत हाई लेवल ऑफ ओनरशिप चाहिए. जैसे रियल एस्टेट आप ले लीजिए, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन या फ्राइट बिजनेसेस ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स एंड फ्राइट, उसमें एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें आप जेनजीज को बिल्कुल रख सकते हैं फॉर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, मिड लेवल ऑपरेशंस. बट जो मेन पोजीशंस ऑफ पावर है वो हमेशा एक सीनियोरिटी, एक चेन ऑफ कमांड मांगती है. और चेन ऑफ कमांड है तो प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई लेवल का रखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड टॉकिंग डिप्लोमेटिकली एंड बिहेविंग, जिसको मैं एक बहुत फेमस लाइन बोलता हूँ. एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर स्पेशली, उनके मुंह में चीनी और सर पे बर्फ होनी चाहिए. इसका ये मतलब है, आप समझ गए होंगे. Right. कोई भी वो स्टेटमेंट देते हैं, You have to be sweet at every time. and you have to be एग्जैक्टली, और cool at दिमाग every ठंडा रहना situation. चाहिए हमेशा. Right. Because if by any chance you lose your temper or you speak anything which is foul or incorrect, you will repent it for life, or you can Absolutely. repent it for life. Although there is a research that from Monster.com again that says that 50% of Gen Z workers say they display clear professionalism and work at work, but only 8% of their non-Gen Z colleagues agree to it. ये है, मतलब this is an entire research. I'm not making out of it. Next is 64% of Gen Z say they have strong work ethics, but only 10% of their colleagues agree. But मैं इस रिसर्च से फुल्ली मैं भी अग्री नहीं करता. आई सी जहाँ पे भी Gen Zs को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक सेंस ऑफ वैल्यू दिखती है, वहां पे उनका प्रोफेशनलिज्म खुद ब खुद इनेटली आएगा. मैं इससे डिफर करता हूँ पर्सनली. रिसर्च इज देयर बट मैं इससे डिफर करता हूँ. हाँ, कुछ चीजें हैं वो विद टाइम सीखेंगे, विद एक्सपीरियंस सीखेंगे, राइट, जो हमने सीखी. इजी वे और द हार्ड वे वी डोंट नो, बट वो सीखेंगे. बट आई थिंक दैट शुड बी डन. जैसे टेक्स्ट से यू कैन से व्हाट्सएप वो ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर मेल्स. हम मेल्स पे ज्यादा फ्रेंडली हैं क्योंकि मेल्स में एक सेंस ऑफ फॉर्मलिज्म है, एक प्रूफ है, एक प्रोफेशनलिज्म टच आता है. किसी को भी हम मिलते हैं, हम स्टार्टिंग और एंड ऑफ द डे पे ग्रीट करते हैं. वो हमें इसलिए आता है क्योंकि वी वांट टू talk to them and we want to start the morning on a very vibrant note. And I think we want to last an impression as well. Exactly. We want to last और ये छोटी छोटी चीजें होती है. कहते हैं ना, the small gestures matter. This is one of the small gestures that matters the most. Right. और मैं कंक्लूड एक लाइन बोल के करना चाहूंगा. मैं अभी एक शो पे गया था, किसी एक स्पोकन वर्ड्स आर्टिस्ट के, वहां पे एक लाइन थी, आई डोंट नो किसकी थी, उन्होंने बोली थी, discipline is the only liberation. That is, discipline is the only freedom. Otherwise, we all are a slave of our moods. It's a very powerful line. So ये मैंने सीखी थी. मैंने भी यही चीज, पहले मैंने सोचा ये क्या बोला, फिर मैंने बोला ये तो बहुत सही बोला. तो वही वाली चीज. So Shivansh, according to you, what human skills become most valuable in next 10 years? So जैसे पुलकित मैंने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट है कि 2 ऐसे स्किल्स हैं जो एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगी, जीरो रिप्लेसमेंट है. एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग. एम्पैथी क्योंकि इमोशंस आर मोर ह्यूमन, जो ह्यूमन टच कहते हैं. एंड एक्टिव लिसनिंग क्योंकि द लिसनिंग दैट वी डू हैज टू बी रिफ्लेक्टिव, टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड गेट द वर्क डन एफिशिएंटली एंड सफिशिएंटली. सो मुझे ऐसा लगता है कि 2 स्किल्स, टू रिटरेट वंस मोर, एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग कभी रिप्लेस नहीं हो सकते एआई से. बिकॉज एआई को फीड इन कौन कर रहा है? Humans with the prompt.
और जो ह्यूमन टच है वो इसीलिए क्योंकि दे आर एम्पैथेटिक, दे हैव सम काइंड ऑफ बिलोंगिंग। और बिलोंगिंगनेस कहाँ से आती है? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो हमने पढ़ा था वहां से, कि हमारे अंदर एक इमोशंस है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। सिमिलरली एक सेंस ऑफ हियरिंग होता है। एआई क्या हियर करता है? एआई वही हियर करता है जो उसको ह्यूमंस हियर करवाना चाहते हैं। सो दीज आर द टू स्किल्स आई फील हैव अ जीरो रिप्लेसमेंट इन द फ्यूचर एज वेल। So Shivansh, you meet lot of students, you train them. So according to you, what is the most common insecurity student hide today? इनसिक्योरिटीज बहुत सारी होती है पुलकित, Hmm. एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस आंसर। फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी टू बी हर्ड, फेल्ट एंड सीन। Okay. कभी भी आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हो, हमें चाहिए क्या होता है? कोई आपकी ड्रेस को अप्रिशिएट करे, कोई आपके नेचर को अप्रिशिएट करे। तारीफ किसको नहीं पसंद? बिल्कुल. कोई आपको एक पॉजिटिव आउटलुक से देखे, राइट, एक ओपन माइंडसेट से सुने। तो फर्स्ट इज द एबिलिटी और द काइंड ऑफ एलिमेंट which says that I want to be heard, I want to be seen, I want to be felt, I want to be appreciated. I want to be appreciated. Right. ये सबसे पहली चीज है जो मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी होती है। बी है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। कोई में क्या होता है, वो पेरेंट्स से बात करते हैं, वो गैप आ गया, जो गैप Generation हमारे में gap आ कहीं था गया। अब आ गया, वो कल्चरल गैप है, जो भी गैप आया। ब्रदर सिस्टर्स में एज गैप होगा बट वही लिमिटेशन आ गई। अब फ्रेंड्स की जहां पे बात करते हैं, दे एक्चुअली नीड दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स जिनसे वो अपना हार्ट शेयर कर सके, जिनसे वो अपनी Right. एक्चुअल फीलिंग्स शेयर कर सके। बिकॉज हमें पता है कि आज की डेट में एलजीबीटी ले लीजिए, तो कोई भी अदर एरियाज ले लीजिए, वो बहुत कॉमन हो गए। सो दे एक्चुअली वांट, दे आर वेरी प्योर हार्टेड, तो उनको ये चाहिए कि कोई उनको समझे और सुने। सो दैट इज द एबिलिटी। और जब उनको घर पे नहीं मिलता, जब लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस, दैट इज व्हाट आई हैव सीन, जो आपने बोला कि ये होता है। तो जब वहां पे वो चीज उनको नहीं मिलती, दे लुक फॉर ऑप्शंस आउटसाइड, और जब वो भी नहीं मिलता, they get back sadly into the closet. I think friends होना बहुत important है. Exactly, जो आपको comfortable रखें, आपके टेम्पर को भी थोड़ा कंट्रोल में रखें, आपकी कहना तो नहीं चाहिए बट आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा रेगुलेटेड रखें। उसमें ईगो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? ईगो मसाजिंग कहते हैं जिसको हम, तो वो भी थोड़ा सा प्लीज रखें और आपके आसपास रहे, बिकॉज एट द एंड ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। जितना ही हम बोल रहे हैं हमें ह्यूमन इंटरेक्शंस पसंद है, हमें बातचीत करना पसंद है, राइट? We like to talk along the way. Human is a social animal. तो जितना हम socialize करेंगे, जितना हम gatherings में जाएंगे, जितना हम नए लोगों से मिलेंगे, interact करेंगे, तो उतना ही हम comfortable होंगे, फील करेंगे। Exactly. So मुझे लगता है कि ये इनसिक्योरिटीज अगर इनको हम थोड़ा सा वर्क अराउंड कर लें, both millennials, Gen Alphas and Gen Zs, so it can be a very harmonious environment. ऐसा कुछ नहीं जो हम फाइट नहीं कर सकते। I think you have like taken a very good point on this कि तीनों generations को साथ में ही like mix up होके build up होके ही करना पड़ेगा। Correct. You cannot blame a generation, you cannot blame someone कि यार ये next generation का है तो इनका attitude ऐसा है। Every time this is not correct. Sometimes you have to take a step as well towards Exactly. their betterment. Handshaking interface है, उसी में काम करना है। Right, right. So Shivansh, now we are starting with the rapid fire. I will बिल्कुल। ask you a question and you have to give a very crisp answer to that. Very excited. Let's go Okay. all into it. Question 1. One communication skill every student should learn. Formal speaking, I think. Be it formal mail writing or formal communication in terms of interviews, like mock interviews. Amazing. Biggest red flag in young professionals. Disrespect towards time. Okay. Confidence or discipline? What matters most? Discipline. It will teach you confidence along the way. Amazing. Public speaking or writing skills? Public speaking. Because जो दिखता है वही बिकता है. Lot of writers are anonymous. क्यों anonymous हैं? क्योंकि उनकी जो They're speech never थी seen. वो किसी और ने बोल दी, तो वो कभी जाने ही नहीं गए। जिनने बोला हम उनको जानते हैं। जैसे बहुत सारे सिंगर्स राइटर्स नहीं होते हैं, बट जान पहचान ज्यादा किसकी होती है, नाम किसका होता है? Singers का. That is the answer. Okay. Amazing. One workplace habit students should develop early. Punctuality and time management. It goes hand in hand. कि वो थोड़ा सा समझे कि we have to be on time. उसके लिए कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, एक शेड्यूल वर्क अराउंड कराना पड़ेगा। लॉट ऑफ देम डू, बट वो हमें थोड़ा सा उस पर वर्क अराउंड करना पड़ेगा। सो आई थिंक इफ दे डेवलप दिस, अदर थिंग्स विल बी इजी, स्ट्रेस लेवल्स विल बी लो, कम्युनिकेशन विल बी स्ट्रॉन्गर। Agreed. So one piece of advice for Gen Alphas. सो द पीस ऑफ एडवाइस इज, एआई पे सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सो ट्राई टू बिल्ड योर ओन किंगडम थ्रू योर हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट वर्क with a tincture of, that is कहते हैं चुटकी भर, with a tincture of discipline which you can learn from the millennials.
So Shivansh, like if you have to give one tip, whosoever is watching this episode might be a millennial child or a Gen Z or a Gen Alpha, what would be that tip? सो टिप मेरे लिए होगी जिससे आजकल लोग बहुत डरने लग गए हैं. Hmm. मैं हिंदी में बोलूंगा, एक भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से नहीं डरता. डर बहुत बढ़ गया है. दैट इज बिल्कुल. फेलियर इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन. So do what you like, step into it, go crazy after implementing, experimenting, executing with a sense of thinking कि इस चीज का end goal क्या है. That is my one liner that I would like to give to all my beloved Gen Zs, Gen Alphas, the people I work with, because I love them like anything. And I'm sure the future is really bright for them, right? Because every single day I work with them. And I'm sure if they opt in for this and go all in, they'll be bigger than the sky as well. Amazing. So amazing. So Shivansh, thank you so much Thank you. for sharing your insights, sharing your views, bringing out those reports and publications जो आपने अपने पूरे answers में बोली. So that was a really eye opener for Thank all you. our audience. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you so much. Thank you, viewers.